Everyone, can you see this board? बोर्ड दिख पा रहे हैं आप लोग? Sir. Yes, sir. Okay. So someone was having doubt in lecture class. Good afternoon, sir. Yes, sir. Yes, sir. That one. Yes. What was it? So that a Newton ring experiment, at till what height should we raise the plane of convex lens to make the pattern disappear? सर सर न्यूटन सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. This is something else. Which problem is it? Problem number? Sir, 4000 and 4002 angstrom. Question number 6, I think. Yes, sir. Yes, sir. That one. See, in any interference pattern, the intensity variation looks something like this. So sin x is the behavior of electric field, or sin square x is the behavior of intensity. Let us say x from 0 to 20. So when this graph show you one, it is like some bright spot. In Newton ring, it is corresponding to bright ring. जहाँ जहाँ आप ये blue curve वाली बंद देखते हैं, ये सब bright spots हैं. If blue curve is 0, these are dark spot, and intensity is going from 0 to 1 very rapidly. This is for one wavelength. So if we have only one light, we will see some bright and dark pattern. Young's experiment fringes मिलती है, Newton's ring में ring मिलेंगे. If we have two wavelength, then so other wavelength will also make its pattern. दूसरी wavelength भी अपना खुद का एक pattern बनाएगी. Let us say the other wavelength is slightly different from previous one. So here you can see again two color. One is because of first wavelength lambda 1, and second pattern is because of other wavelength lambda 2. And these two are obviously not exactly equal, but difference is very less. Exactly equal नहीं wavelength, थोड़ा सा difference है. What is the overall pattern you will see on screen? Since wavelength are nearly equal, color is also nearly same. Color भी दोनों का एक जैसा ही दिखेगा. So from the color point of view, you cannot differentiate. Color देख के तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी रिंग ब्राइट बना रही है, कौन सा wavelength ब्राइट बना रहा है, कौन सा डार्क. पैटर्न जो आप देखेंगे, it is the sum of these two intensity. जो भी इंटेंसिटी आपको मिलेगी, वो इन दोनों का सम होगी वहां पर. So what we will see, let me make sum of these two. इन दोनों का सम मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ किस तरीके दिखेगा. This is the pattern we are seeing. You can see that around x is equal to 0, there are maxima and minima. क्यों? Because maxima of lambda 1 coincide with maxima of lambda 2. इसलिए bright is quite clear. Second position पर you can see they look like nearly equal. हल्का सा difference है, and therefore their sum is also same.
but at some point you can see their sum is going to mid value. Why is this happening? ऐसा क्यों हो रहा है? Because at this point the maximum of one is coinciding with minimum of other. Will you see any pattern here? क्या यहाँ पे कोई फ्रिंज मिलेगी आपको? No, sir. They are getting destroyed. And let me further reduce the difference between these two. मैं इस difference को थोड़ा और कम कर दूं. 10.1 only. रेंज को बढ़ाना होगा. Maybe 10. Now here you can see the intensity is roughly same because of both wavelengths. So this is the point where you can say that there is no ring pattern. For other points, बाकी दूसरे points के लिए there are several differences. Like bright is not equally bright. Bright जो है वो पहले इतना bright नहीं है. Intensity is decreasing. Intensity कम हो रही है. But at certain point there is no ring at all. कोई ring ही नहीं बन पा रहा है. This is the first occurrence where you are not getting ring. ये पहला इंस्टेंस है जहाँ पे आपको रिंग नहीं मिला. ओके, क्या ये हमेशा रहेगा? नहीं, बिकॉज दिस डिफरेंस ये यहाँ पे क्यों एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कोइंसाइड किया? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ द सेम डिफरेंस आफ्टर सम टाइम अगेन मैक्सिमा कोइंसाइड विद मैक्सिमा, मिनिमा कोइंसाइड विद मिनिमा. वापस सिचुएशन फिर से वही आएगी कि मैक्सिमा मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड करेगा, मिनिमा मिनिमा के साथ. Then after some time again maxima coincide with minima, minima coincide with maxima. This is the second instance where you will not see the pattern. ये दूसरा पोजीशन है जहां पर आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है. So I am asking for the first instance where you are not getting the pattern. मैं आपसे वो पहली पोजीशन पूछ रहा हूँ जहां पे आपको रिंग नहीं मिल रही है, right? Now in problem number 6, if the lens is moved upward, calculate the height at which fringe pattern around the center will disappear. So this is my claim. क्या claim है? If you move the lens upward, यदि आप लेंस को उठाएंगे ऊपर को, तब सेंटर पर भी कोई रिंग नहीं बनेगा. So before we come to this case, if I ask you that I am having a monochromatic light, मान लीजिए एक ही वेवलेंथ है, and lens is moving upward. एक लेंस है जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है. प्लेट ये है, लेंस ये है, और ये लेंस ऊपर की ओर जा रहा है. What sort of changes will you see from top? आपको ऊपर से किस तरह के चेंजेस दिखाई देंगे पैटर्न में? अभी दो वेवलेंथ की बात ही नहीं कर रहे, एक ही वेवलेंथ. क्या पैटर्न में कोई चेंज आएगा या पैटर्न वैसे का वैसा ही रहेगा? So when this lens was touching the plate, जब ये लेंस प्लेट को टच कर रहा था, तब क्या पैटर्न था? सेंट्रल डार्क, बीच में डार्क था, देन ब्राइट रिंग, उसके अराउंड एक ब्राइट रिंग थी, फिर डार्क हो गया था, एंड देन ब्राइट रिंग, फिर से ब्राइट रिंग बनी थी. This is the case when this lens is touching the glass plate. ये वो केस है जब लेंस ग्लास प्लेट को टच करता है. If I move this lens upward, यदि इस लेंस को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाया जाए,
किस तरह के चेंजेस आपको मिलेंगे इस पैटर्न में? क्या रिंग्स मिलेंगी आपको? Sir, the condition of thin film interference will not persist. Let us assume that the films are still thin. मान लेते हैं लेंस उठाया है बट इतना भी नहीं उठाया है कि आपका थिन फिल्म का कंसेप्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि लेंस कुछ हमने कुछ सेंटीमीटर से उठा दिया है। लेट अस से लेंस इज लिफ्टेड बाय ओनली हाफ मिलीमीटर। ओके, सो पाथ डिफरेंस विल चेंज। पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो फेज डिफरेंस भी चेंज होगा, एंड इफ फेज डिफरेंस चेंजेस द पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग विल आल्सो चेंज। जहां पहले ब्राइट मिल रहा था, अब जरूरी नहीं कि आपको ब्राइट ही मिले, और जहां डार्क मिल रहा था वो आपको जरूरी नहीं कि डार्क ही मिले। सो दिस पैटर्न विल चेंज। ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज होगा, राइट? when a change in pattern take place, it look like pattern is moving। आप ये भी कह सकते हैं कि पैटर्न मूव कर रहा है। यहाँ पे किस तरह की मूवमेंट पॉसिबल है? Either you can say that the rings are evolving from center, या तो आपको ऐसा लगेगा कि रिंग्स सेंटर में से बाहर की ओर निकल रही हैं, और it may also look like that the rings are collapsing into center। ऐसा भी हो सकता है कि रिंग सेंटर की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे सेंटर में कोलैप्स हो जाती है। Let me see if I can show you something on Google। Newton's ring with moving lens। Newton's rings. Okay, so they are not moving। Okay, so let us see what will happen if we move the lens upward। देखते हैं क्या होता है यदि लेंस ऊपर की ओर मूव करता है। So case 1, lens touch the plate, जो आपने पढ़ा है। So this is equivalent to this case। There is a glass plate, and on the glass plate this is the lens। What is the center? Center क्या है यहाँ पर? The center here is black। Why it is black? ये black क्यों है? Because phase difference is pi। pi का क्यों है? Because of reflection। reflection से pi का difference आया है। path difference की वजह से कोई phase change नहीं हुआ। After that we are getting a ring। Okay, then we are getting another black ring and so on। Let us talk about nth ring। कोई nth ring की बात करते हैं जो कि अभी ब्राइट है मान लीजिए, एंड दिस nth ring corresponds to this thickness। जो भी nth ring है मान लीजिए वो इस thickness के corresponding है। Let us say this t is equal to around 1/10 मिलीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे thickness 1/10 मिलीमीटर थी, और उसके corresponding you are getting 20th ring। एक 20th ring मिली आपको
जो कि ब्राइट है. ओके, इफ आई लिफ्ट दिस लेंस by 1/10 millimeter, what kind of image will I see? मुझे किस तरह की इमेज दिखाई देगी? यदि ये डिस्टेंस 1/10 मिलीमीटर है, what do I see at center? मुझे सेंटर पे क्या दिखाई देगा? कोई बता सकता है? ब्राइट रिंग. सो जो भी 20th रिंग पर बन रहा था वो अब सेंटर में बनेगा. एग्री? एंड लेट अस से एट 2/20 मिलीमीटर, पहले 2/20 मिलीमीटर पर आपको 2/10 मिलीमीटर पर आपको 2/10 मीन्स 1/5 मिलीमीटर पर यू आर गेटिंग ए डार्क रिंग. एक डार्क रिंग बन रही थी एंड दिस रिंग वाज लेट अस से 35th रिंग. ये 35वीं रिंग थी जो कि ब्लैक थी और ये करस्पॉन्ड करती है 1/5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर. व्हाट विल हैपन टू दिस रिंग? जब लेंस को 1/10 मिलीमीटर से ऊपर उठा दिया, अब ये रिंग का क्या होगा? 35वीं रिंग का क्या स्टेटस है यहाँ पर? एनीवन? सो 20th रिंग थी जो कि ब्राइट है यहाँ पर और ये करस्पॉन्ड करती है t इज इक्वल टू 1/10 मिलीमीटर को. 35th रिंग है जो कि डार्क है और ये करस्पॉन्ड करती है t इज इक्वल टू लेट अस से 2/10 मिलीमीटर को. अब आपने कहा कि 20th रिंग इस केस में हो गई है, यही चीज यहाँ पे आके बन गया है सेंटर. सेंटर मीन्स 0th रिंग ब्राइट है और थिकनेस अभी 1/10 मिलीमीटर है. ये 35th रिंग का क्या होगा स्टेटस? बता सकते हैं यहाँ पे कौन से ऑर्डर की रिंग बनने वाली है? टेंथ ऑर्डर. 10th या 15th? 15th. 15th ऑर्डर की बनेगी, डार्क ही होगी और कितनी थिकनेस होगी? थिकनेस भी सेम है 2/10 मिलीमीटर. क्यों यहाँ पे 15th की बनी? बिकॉज अब से 15 रिंग आगे बढ़ती ही थिकनेस 2/10 मिलीमीटर हो जाएगी. राइट? तो जो पहले 20वीं रिंग थी वो 0th रिंग हो गई, जो पहले 35वीं रिंग थी वो 15वीं रिंग हो गई. 19वीं रिंग का क्या हुआ? जो यहाँ पे 19वीं रिंग थी वो कहाँ है यहाँ पर? लेटर से 19वीं रिंग बिलोंग करती है t इज इक्वल टू 1/11 मिलीमीटर को. उसका यहाँ पे क्या हाल हुआ? 1/11 और इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं. t इज इक्वल टू 0.9/10 मिलीमीटर को बिलोंग करती है. 19वीं रिंग का अब क्या हुआ यहाँ पर? But where is the point which have thickness 0.9/10 मिलीमीटर? इस सिनेरियो में वो पॉइंट कहाँ है जो इस थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है? क्या अभी कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे फिल्म की थिकनेस 0.09 मिलीमीटर है? नो सर. So obviously there is no 19th ring. 19th ring अब है ही नहीं कहीं, पॉसिबली नहीं है. Because if you lift the lens by 0.01 मिलीमीटर, 0.09 मिलीमीटर की थिकनेस आप ला ही नहीं सकते. तो व्हाट इट लुक लाइक? कैसा लग रहा है देखने से? रिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स सेंटर. जैसे आपने 1/10 मिलीमीटर ऊपर उठाया
20 रिंग कोलैप्स कर गई सेंटर की ओर, राइट? So can I say that if we move the lens up, it implies that rings move towards center. सही कह रहे हैं? So there is no existence of first 20th ring, first 20 ring, 0 से लेके 19 तक की रिंग सब खत्म हो गई, सब सेंटर में जाकर के कोलैप्स कर गई। जो पहले 20वीं रिंग थी वो अब सेंटर बन गई है। 21वीं रिंग अब यहाँ पे पहली रिंग बन जाएगी, 35वीं रिंग यहाँ पे अब 15वीं रिंग बन जाएगी, एंड सो ऑन। एनी डाउट हियर? यहाँ पे किसी को डाउट है अभी भी? Sir, यस। that means from the center dot till the radius of the 20th ring, we will just see bright light. After that, the pattern starts. Right. So first 20th ring. So when you move the lens slowly, जब अभी लेंस धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा रहे होंगे, and if you see from eyepiece, आप हाथों हाथ eyepiece से देखते भी रहिए, you will see that the rings are moving towards center and collapsing into center. Center की ओर बढ़ती हैं और गायब हो जाती हैं. Okay. If you bring the lens downward, lens को वापस आप नीचे की ओर लाएंगे, it will look like rings are evolving from center. Center में से rings generate हो रही हैं और बाहर की ओर चलती जा रही हैं. Right. Now if I have two wavelength, अब मान लीजिए कि दो wavelength है ऊपर से. It's not monochromatic, it is bichromatic light. So there is some radius at which you do not see any ring. एक radius ऐसी है जहां पे आपको ring नहीं मिलता है. Let us say that is 40th ring. मान लेते हैं 40th ring का जो भी radius था वो point है जहां पे आपको ring disappear हो जाता है. So the question can be redesigned in such a way. इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी रिडिजाइन कर सकते हैं कि लेंस को कितना उठाया जाए that 40th ring comes to the center. 40वीं रिंग सेंटर पर आ जाए. कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को? All you need to know that 40th रिंग का रेडियस क्या था एंड उस रेडियस के लिए कितना थिकनेस होना चाहिए फिल्म का. If you know the thickness, you can easily answer that सिस्टम को उस थिकनेस से उठाना है and you will get same scenario at the center. Is my point clear? Yes, sir. So We will first of calculate the under root nr lambda, and that will be the height by which lens has to be raised. First of all, find the radius for which there is no ring pattern. पहले तो वो radius पता कीजिए जिस पर आपको ring pattern बन ही नहीं रहा है. Then find the thickness of the film corresponding to that radius. उस radius के लिए film की thickness कितनी है? Okay. Let us say your thickness comes out to be 0.5 millimeter. मान लीजिए आपकी thickness आती है 0.5 millimeter. If I move the lens by 0.5 millimeter, what will happen? क्या होगा? The same scenario now will come at center. जो आपको उस रेडियस पे दिखाई दे रहा था वो सब चीजें अब आपको सेंटर पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी. तो उस रेडियस पे आपको कोई रिंग नहीं मिल रहा था, इसका मतलब अब आपको सेंटर से ही कोई रिंग नहीं मिलेगा. Okay. I found a long time back moving ring, but I do not have link. I can show you another pattern, moving ring Michelson experiment.
like here. Although this is not Newton's ring, these rings are generated by Michelson experiment. But what do you see? Rings are collapsing into center. आप देख रहे होंगे रिंग सेंटर की ओर कोलैप्स कर रही हैं या सेंटर से बाहर निकल रही हैं. Like here. So their center is bright. इनका center bright है. So this kind of pattern you will see if you move the lens. यदि आप लेंस को मूव कराएंगे आपको इसी तरीके का मूवमेंट दिखाई देगा. Right? Is it clear now? अब आपको क्लियर है? Yes, sir. Hello. Sir, not audible. Hello. Hello, sir. Hello. Determined by its viscosity. If load is
can just wait for a few minutes. The internet is not working from my side. I'm using mobile data right now. Just wait for 1-2 minutes. I'll let you know what is the status. Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. And screen, can you see? Can you see the screen? Yes, sir. Now it is visible. Okay. Any doubt with this part? इस प्रॉब्लम को लेके किसी भी तरह का कोई डाउट है? No doubt, sir. Anything else? कोई और प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन 1 का सर थर्ड पार्ट Question 1, third सर part. सर प्रीवियस ट्यूटोरियल You mean this? यस सर Yes. सर अगर हम जो इंटरफेस पैटर्न है सर उसका डायरेक्शन वीविंग चेंज करते हैं तो इसका जो शेप आएगा वो चेंज हो जाएगा ना सर? आप फिर से कहिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. सर अगर हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न है सर उसका डायरेक्शन ऑफ वीव चेंज करते हैं तो सर फ्रिंज को जो पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा ना? क्या चेंज कर रहे हैं आप? डायरेक्शन ऑफ लाइट. सर डायरेक्शन ऑफ व्यू सर स्क्रीन हम कैसे प्लेस कर रहे हैं? Right. So if you do not put the skin parallel to slit, pattern will change. You will get fringes of unequal width. जो थर्ड पार्ट है सर उसमें हम लोग सर y एक्सिस के पैरेलल रखेंगे वो स्क्रीन सर तो जो वो बनेगा पैटर्न वो बनेगा सर हाइपरबोलिक. सर अगर हम लोग z एक्सिस के पैरेलल रखते हैं सर जो फिन बनेगी सर वो सर्कुलर बनेगी. See, there are not much option for the screen. Screen को लेकर के बहुत ऑप्शन है नहीं आपके पास. So let us say this is the paper. ये पेपर है. So let me also define. This is a vertical axis. इसको आप y axis कह सकते हैं. ये पेपर पे ही है. This is x axis. This is also on paper. ये भी पेपर पर ही है और ये एंगल जो है 90 डिग्री है. ओके, सॉरी. आई एम टेकिंग ए सिमिलर पेपर. मैंने एक और पेपर लिया है इसी टाइप का एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस पेपर फॉर स्लिट. इसको मैं स्लिट के लिए यूज करूंगा. सो आई मेक वन होल हियर. एक होल मैंने यहाँ पे किया, एक होल मैंने नीचे किया है. These two paper are in front of each other. दोनों पेपर एक दूसरे के आमने सामने हैं. एंड दिस इज द z एक्सिस. इसको आप z एक्सिस मान सकते हैं. which is passing through both the paper, जो दोनों पेपर से पास हो रही है. Okay. अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? सर इसमें अगर आपने बोला था कि जो स्लिट विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है, राइट. तो सर उसका मतलब वो डायरेक्ट नहीं होगा फॉर्मूला से, तो उसके लिए सर डिराइव करना पड़ेगा पहले. दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर. ये सेपरेशन 4 सेंटीमीटर का है एंड दिस डिस्टेंस इन दोनों पेपर के बीच का डिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर. ये 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. राइट. ओके, स्मॉल d इज 4, स्मॉल d 4 है, कैपिटल D 100 है. आपका क्या डाउट है यहाँ पर? सर जब सर कोई पॉइंट पी ले लेंगे आर्बिट्री पॉइंट, सर वहां पे इंटरफेरेंस करेंगे, तो उसके बाद अगर जैसे हमने स्क्रीन जो आपने सर एक z में x y z बनेगा कोऑर्डिनेट सर उसका.
सर इसका आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। लेट मी से दिस इज एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कह देते हैं, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए अब, एक्स वाई, और जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100, राइट। ये एक स्लिट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड की वैल्यू 0 है यहाँ पर। तो दिस इज एक्स तो 0 है, वाई कितना है dy/2, जेड की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट क्या है 0 माइनस dy/2 0। What is the path difference between the two ray reaching at P? जो दो लाइट रे हैं जो P पर पहुंचेंगी, उनमें कितना पाथ डिफरेंस है। एक लाइट रे तो ये है, दूसरी लाइट रे ये है, इनमें कितना पाथ डिफरेंस है बताइए। ये R1 है, ये R2 है। What is R2 minus R1? और जो भी है लेट अस से R2 minus R1 is equal to lambda, वो मान लीजिए lambda है। तो P पे क्या मिलेगा आपको, ब्राइट मिलेगा, देखिए ये ब्राइट, और कहाँ कहाँ मिलेगा, और वो कौन कौन से पॉइंट है जिसके लिए R2 minus R1 lambda है इस पेपर पे। इसके ठीक नीचे को चले तो आपको क्या सेम लैम्डा मिलेगा, क्या इसके ठीक नीचे यहाँ पे भी आपको R2 minus R1 लैम्डा मिलेगा। या सिर्फ x के अलोंग आगे बढ़े तो मिलेगा आपको सेम वैल्यू दोबारा से। देयर इज ओनली पर्टिकुलर पाथ, सिर्फ एक ही एक ऐसा पाथ है जिस पर आपको R2 minus R1 लैम्डा मिलेगा। कौन सा पाथ है वो, इट विल लुक लाइक दिस। पेपर पे यदि आप उसको देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ओके। इन सभी पॉइंट्स पे इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर R2 minus R1 निकालिए, वो लैम्डा होगा। और इसका मतलब क्या है, दिस इज ए ब्राइट कर्व, ये ब्राइट कर्व है। सिमिलरली इफ R2 minus R1 is equal to lambda by 2, इसका मतलब क्या हुआ, डार्क। R2 minus R1 lambda by 2 कहां कहां पर है, चेक योरसेल्फ। एक कर्व मिलेगा जिस पर R2 minus R1 lambda है, तो ये कर्व कैसा दिखाई देगा आपको, डार्क कर्व। जहां पे R2 minus R1 0 है, वहां पे क्या मिलेगा आपको, ब्राइट। R2 minus R1 0 बताइए कहां कहां पर है, वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पे दोनों सोर्स से डिस्टेंस बराबर है। सेंटर, एक तो पॉइंट यही हो गया सेंटर, और भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस, है एक्स एक्सिस पे कहीं भी देख लीजिए आप, R2 minus R1 इज 0। इस एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, S1 से डिस्टेंस निकालिए, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट पे S2 से भी डिस्टेंस निकालिए, सेम आएगी। एंड देयरफॉर सेंट्रल इज नॉट कर्व, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कर्व नहीं है, वो क्या है, ब्राइट। एंड दिस इज नॉट ए कर्व, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। तो सेंट्रल में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसके इधर या उधर आपको हाइपरबोलिक कर्व मिलेंगे। ये माइनस लैम्डा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग है, सो ये भी डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, और ऐसे कर्व आपको दोनों तरफ मिलते रहेंगे। सो दिस इज द पैटर्न यू विल सी ऑन ए पेपर। ये वो पैटर्न है जो आपको पेपर पे दिखाई देगा। आपके क्या डाउट है यहाँ पर।
सी प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप लोग पूछते नहीं है तब मुझे भी डाउट रहता है कि आप समझे या नहीं समझे। Sir, यस this general method that we learned previously, R1 minus R2 equal to del constant. For each of them, we will get a separate collection of hyperbola. right, so as you change delta you will get a different hyperbola. Okay, so for this curve delta is how much? Lambda by 2. or this curve, this is equal, you get this curve when delta is equal to lambda, you get this straight line when delta is equal to 0, you are getting this curve when delta is equal to minus lambda by 2, you are getting this curve for delta is equal to minus lambda. You will get again a bright hyperbola here, sorry, dark hyperbola here. What is the delta for this? 3 lambda by 2 and so on. Okay, so instead of solving for each delta, मेरा कहना ये था पिछली बार कि आप हर एक डेल्टा के लिए बार बार ये कैलकुलेशन करें, उससे अच्छा क्या है, you just assume that r2 minus r1 is equal to delta. आप सिर्फ r2 minus r1 is equal to delta के लिए इक्वेशन निकालिए, and then if you want to know the central position, आपको पता करना है सेंट्रल किस तरीके का बनेगा, put delta is equal to 0. If you want to see the shape of first bright, put delta is equal to lambda and so on. Okay. Yes, sir. Okay. You can put lambda directly here. आप सीधे सीधे यहाँ पे भी lambda रख सकते हैं, और ये किसकी इक्वेशन बनेगी अब? हाइपरबोला ऑफ फर्स्ट ब्राइट, जो फर्स्ट ब्राइट है उसकी। सिमिलरली आपको सेकंड ब्राइट की इक्वेशन पता करनी है, तो इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज फॉर सेकंड ब्राइट, राइट? Sir, Yes. for such discrete scenarios, here we cannot establish a straightforward relation like after all the paraxial assumptions we did in normal interference. Here we cannot establish such formula. We have to separately do any operation that we want regarding any numerical. See, here I explicitly tell you that do not apply any approximation. Okay, can you use the approximation for fringe width? See, when we apply this formula, what was the formula? Lambda d upon d. What was the condition? D is less than d. How do you define this condition? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जब स्मॉल डी कैपिटल डी से छोटा है, बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है? इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इस केस में देखिए, क्या 4 और 100, क्या आप 4 को इग्नोर कर सकते हैं क्या 100 के रिस्पेक्ट में? No, sir. No, sir. और यदि आप फिर भी करते हैं, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ एरर? आपको कितना एरर मिलेगा? आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो 4% से गलत होगा। और इसका ये भी मतलब है, इफ यू जस्ट टेक दिस एजम्पशन, आप यदि फिर भी इस एजम्पशन को लेते हैं, तो थ्योरी क्या कहेगी? दैट इंस्टेड ऑफ हाइपरबोला यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। आपको हाइपरबोला ना मिलकर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दोनों ही इमेज में जो एरर होगा, किसी भी पॉइंट पे जो सेपरेशन होगा एक्सपेरिमेंटल डेटा और रियल डेटा में, वो 4% से गलत हो सकता है। okay. आपको 4% की एरर मंजूर है, अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए। 4% आपको गलत लगता है, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक द अप्रोक्सीमेशन, तो आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। ओके, सो रियल लाइफ में वी ट्राई टू कीप एरर एज स्मॉल एज पॉसिबल। 1% 2% तक एरर हम एक्सेप्ट करते हैं,
we are not supposed to go beyond that. So did you guys solve third tutorial? Third किया है किसी ने? फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे करेंगे? दो एंटीना है 300 मीटर की डिस्टेंस पर एंड दे आर सिंक्रोनाइज्ड, दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, दे ट्रांसमिट द सेम वेव, दोनों एक ही तरह की वेव ट्रांसमिट करते हैं. देयर इज ए कार मूविंग in the same direction. I mean, the car is moving parallel to these two antenna, but it has a distance of 1 kilometer from the antenna. If the car is at the position of second maximum, इसका मतलब क्या हुआ? If car is here, so we have one antenna here, एक antenna यहाँ पर है, एक antenna यहाँ पर है, and car is at a 100 kilometer distance from this set of antenna. कार यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. यदि कार यहाँ पर है and if the driver wants to listen the signal, यदि ड्राइवर को सिग्नल सुनने का मन है, he can listen. यहाँ पे सिग्नल उसको मिलेगा. But if he just drive in this direction, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर ड्राइवर को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा. थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर से सिग्नल मिलेगा. थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर से सिग्नल गायब हो जाएगा. कुछ और आगे जाने पर फिर सिग्नल आएगा. क्यों हो रहा है ऐसा? बता सकते? पार्ट डिफरेंस चेंज होने की वजह से. राइट. सो दिस इज द सेकंड मैक्सिमा. इसको आप कह सकते हैं कि ये सेकंड मैक्सिमा है. फर्स्ट मैक्सिमा ये है. सो द पोजीशन ऑफ कार एट दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन इज कितनी है? 400 मीटर. पूछा क्या गया है? लैम्डा. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल? इन एंटीना से किस वेवलेंथ का सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है? और क्या पूछा गया? नथिंग. ओके. हाउ मच फर्दर मस्ट द कार ट्रेवल टू एनकाउंटर द नेक्स्ट मिनिमम? और कितना आगे चले कि फिर से सिग्नल लॉस्ट हो जाए? यहाँ ये पोजीशन कितनी दूरी पर होगी? बट देयर इज ए कंडीशन. एक कंडीशन भी रखी गई है. क्या? कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है. दिस इज स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, और बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के आपको ये सॉल्व करना है. कर सकते हैं क्या? Yes, sir. At 400 meter, R1 minus R2 equal to 2 lambda. Annually, yes. So, इस एंटीना की डिस्टेंस यदि R1 है और इस एंटीना की डिस्टेंस यदि R2 है, so R2 minus R1 is precisely equal to 2 lambda. Okay. All the parameters are known to you. सारे पैरामीटर्स पता है आपको. यू कैन कैलकुलेट R1 R2. जो आपको नहीं पता है वो लैम्डा. ओके. सो वन इक्वेशन वन अननोन. एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है. लेट्स सॉल्व फॉर इट. प्रॉब्लम नंबर 2 भी कुछ वैसा ही है. प्रॉब्लम नंबर 3. A students hold a laser that emits light of wavelength 633 nanometer.
एक लेजर है जो लाइट एमिट करता है इस वेवलेंथ का. द बीम passes through a pair of slits separated by 0.3 millimeter in a glass plate attached to the front of laser. बहुत कॉम्प्लिकेटेड. सो एक लेजर है स्टूडेंट के पास और इसी लेजर में आगे एक ग्लास प्लेट भी फिट है और उस ग्लास प्लेट में 2 कट लगे हुए हैं. एंड कितना सेपरेशन है उन 2 कट के बीच में? 0.3 मिलीमीटर का. So the slit is just next to the laser. Slit के ठीक लेजर के ठीक सामने स्लिट है. D is equal to 0.3 millimeter. The beam then falls perpendicular on a screen. जो भी यहाँ से लाइट बीम आ रही है, इस सामने कोई स्क्रीन है, इस पर गिरती है. Creating an interference pattern on it. यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है आपको. The student begins to walk directly towards the screen. स्टूडेंट लेजर के साथ आगे बढ़ रहा है और कैपिटल D is changing with time. The central maxima on the screen is stationary. जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो अपनी जगह पर ही बना हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा. फर्स्ट मैक्सिमा का क्या होगा? क्या वो भी अपनी जगह पर रहेगा? जैसे जैसे कैपिटल डी चेंज होगा टाइम के साथ, व्हाट हैपेंस टू फर्स्ट मैक्सिमा? सर उसका पोजीशन चेंज होगा. उसका पोजीशन चेंज होगा. राइट. क्या पूछा गया है? फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा. डी की स्पीड आपको बता दी है, इस स्पीड से डी कम हो रहा है. फर्स्ट ऑर्डर किस स्पीड से चेंज होगा वो आपको पता करना है. सो दीज प्रॉब्लम्स आर सिंपल. ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है. ओनली डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप सीधे फॉर्मूला रखेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा. जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट. जो आपने पढ़ा है पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कंसेप्ट, उसको फिर से अप्लाई करना है बिना कोई फॉर्मूला याद किए हुए, अपने रीजनिंग के अकॉर्डिंग. प्रॉब्लम नंबर 6 कीजिए आप खुद से, बहुत इजी है. कुछ पूछना है इस ट्यूटोरियल से? And let me also announce quiz. So I'm not conducting any quiz on 19th. Well, I will conduct quiz on 26th March because of Holi. Sir, we have maths quiz on 26th already. Time? I think from 10. So can we set at 11? Okay. Or do you want to conduct quiz on around 19 Holi के दौरान? No sir. No, sir. No, sir. But syllabus is then reference plus deflection. Okay. Yes. इस सैटरडे को हो सकता है. अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की नहीं है, क्विज देने का मन है आपको. है many of you are still silent on third tutorial. Can I put the same problem in quiz? No sir. Right. अभी सॉल्व करना है. That's right. सर Yes. सर ये जो भी आपने ट्यूटोरियल शीट्स अपलोड किए हैं सर, इनके आंसर्स मिल सकते हैं क्या? So these problems are I simply copied from this book. देखिए शायद इन्होंने आंसर्स लिखे हो कहीं. ओके. ये बुक आपको मिल जाएगी. ओके सर. All right then. Sir,